Hello students, I am going to start with the new chapter of 8th standard, that is 11th chapter statistic. So in the first part of this chapter we are going to see how to find out the mean. Actually the average is also known as the arithmetic mean or mean. To find out the mean we use the formula, that is average is equals to sum of all scores means marks, upon total number of scores. So this is one of the formula, and also we use one more formula, that is mean is equals to bar x. How to read this? Bar x is equals to, the symbol of this one is this is called as a summation of fi into xi upon n. So what is the meaning of n? N is nothing but the sum of frequency. So you can understand these two formulas while solving the example. So we start with the practice set 11.1. So the example is like this way. You are given one table and this following table shows, just I am reading the example. The following table shows the number of saplings means small plants planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each of the student. तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग. सो फॉर solving this practice set 11.1, you have to keep your textbook with you, just because I don't write here the example. So see in your textbook side by side. The following table shows, I repeat the example, this table shows the number of saplings planted by 30 students and fill in the boxes. Find the average number of saplings planted by each student. So यहाँ पे मैंने जो boxes बनाए हैं, these are actually the fill in the blanks. So see हमें क्या दिया है. So number of saplings मतलब and the number of students मतलब 4 जो students हैं उन्होंने एक ही प्लांट को लगाया है. नेक्स्ट वन 6 स्टूडेंट्स ने 2 प्लांट्स लगाए हैं. 12 स्टूडेंट्स ने 3 प्लांट्स लगाए हैं और 8 स्टूडेंट्स ने 4 प्लांट्स लगाए हैं. यहाँ पे आपको दिया है नंबर ऑफ सैपलिंग्स के लिए हम xi कंसिडर कर रहे हैं. ये टेबल में आपको दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिनोटेड बाय fi. टू फाइंड आउट द एवरेज you already know the formula, that is fi into xi. We use the formula fi into xi. So fi into xi पहले हम फाइंड आउट करेंगे. साइड बाय साइड हम ये फ्रीक्वेंसी, fi का मतलब हमें फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये फ्रीक्वेंसी के टोटल वही हम यहाँ पे करेंगे. तो n इज इक्वल्स टू 30. इन सब की टोटल कितनी हुई है? 30. अभी fi इंटू एक्स कैसे करेंगे? तो fi इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 1 हम करेंगे, तो 4 इंटू 1 दैट इज़ 4. नेक्स्ट 6 इंटू 2 दैट इज़ 12. नेक्स्ट 12 इंटू 3 दैट इज़ 36 एंड 8 इंटू 4 दैट इज़ 32. अभी यहाँ पर भी हम सबके एडिशन करने वाले हैं. तो एडिशन जब हम करते हैं तो ये सिंबल हम लगाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ समेशन. किसके एडिशन की? हमने fi इंटू एक्स आई जो है उनके एडिशन की. सो समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई इज इक्वल्स टू 84. एंड देन हाउ टू फाइंड आउट द मीन. अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको बताया. सो मीन x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वी कैन राइट n ऑल्सो. n इज नथिंग बट द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो 84 हमने पहले से ही यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा था अपॉन 30. सो आंसर इज 2.8. सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. अगेन वी हैव गिवन वन टेबल. जस्ट आई एम शोइंग द टेबल हियर. सी द एग्जाम्पल. The following table shows the electricity in units used by 25 families of Ekalara village in a month of May. So complete the table and answer the following questions. So see we are given one table. So electricity used in units we are given, that is xi. Number of families, that is we are given the frequency denoted by fi. तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे.
तो fi into xi, that is 7 into 30. So we get here 210. Next one 45 into 2, that is 90. 60 into 8, that is 480. 75 into 5, that is 375. And 90 into 3, that is 270. तो यहाँ पे हमने सब फ्रीक्वेंसी की एडिशन ले ली, दैट इज n इज इक्वल टू 25 एंड समेशन ऑफ fi इंटू xi इज इक्वल टू 1425. सबका एडिशन है 1425. तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. हाउ मेनी फैमिलीज यूज़ 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें से कितनी फैमिलीज़ है जो 45 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए. तो देखो 45 यूनिट्स तो यहाँ पे है. देन हाउ मेनी फैमिलीज़ विल बी देयर, दैट इज़ 2 फैमिलीज़. 45 यूनिट्स जो है वो कितनी फैमिलीज़ यूज़ करी है, 2 फैमिलीज़ यूज़ करी है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 फैमिलीज़. नाउ सी द सेकेंड वन. स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज़ 5. जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है उसका स्कोर हमें चाहिए. द स्कोर इज़ 75. जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है उसका स्कोर कितना है, 75. एंड द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड n. तो हमने पहले से ही फाइंड करके रखा है, दैट इज़ 25. एंड समेशन ऑफ fi इंटू xi वो भी फाइंड आउट किया है, 1425. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज़ फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है. तो अभी मैंने आपको बताया था. सो वी गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ मीन x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन n. सो हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखा था, दैट इज़ 1425 डिवाइडेड बाय 25. तो जब हम इनके डिवीजन करेंगे आंसर आएगा 57. So this is the mean of the example. Now we are going to see the fourth example. Just I am reading the example. The number of science and mathematics projects submitted by Model High School, Nandapur in the last 20 years at the state level science exhibition is. So you are given some numbers, that is 2 3 4 1 2 3 1 5 4 2 3 1 3 5 4 3 2 2 3 2. So we have to prepare the frequency table and the mean of the data. तो ये कैसे करना है अभी मैं बताती हूँ आपको. तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के लिए हम xi कंसिडर करेंगे, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में ले लिया है. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज़ द टैली मार्क्स, then number of years, that is xi, and the last one is fi into xi. तो जब हमें ये दिया है, just see the example, ये जो numbers हमें दिए हैं उसमें से the lowest number is 1 and the highest number is 5. So here I write the numbers like this way, that is 1 2 3 4 5. ये numbers मैंने वहाँ से ले लिए हैं. तो अभी हम 1 by 1 ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मैं अभी बताती हूँ. टैली मार्क्स कैसे करना है. नाउ सी द एग्ज़ाम्पल. तो 2 आया है यहाँ पे, ठीक है. तो 2 जो नंबर है उसके लिए हमें क्या करना है, टैली मार्क्स लगाने हैं. तो 2 एक 1 by 1 हम इसको ऐसा कट भी कर सकते हैं. तो 2 जो है, 2 का जो मार्किंग है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे. सो 2 के सामने यहाँ पे 1 बार मैंने ऐसे निकाला है. आफ्टर दैट 3, तो 3 के सामने ये 1 बार आएगा. आफ्टर दैट 4, तो 4 के सामने 1 आएगा. उसके बाद अगेन 1, तो यहाँ पे 1 ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की. अगेन देयर इज़ अ 2, तो यहाँ पे 2. ऐसे जब 5 टाइम्स होगा तो 1 2 3 4 5 के लिए ऐसे क्रॉस लाइन आपको लगाना है ताकि ये 5 का बंच हम याद कर सकते हैं. तो ऐसे 1 by 1 एक एक लाइन जो है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है. तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके लिखा है. अभी ये हमें काउंट करना है. तो इस टोटल मार्क्स में 1 कितनी बार आया है, तो 3 टाइम्स आया है. सो द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ fi इज 3. 3 इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. जब यह हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टैली मार्क्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे ये 5 का एक बंच है और ये 1, दैट इज़ 6. 5 का 1 बंच और ये 1, दैट इज़ 6. 3 एज इट इज़ एंड 2 एज इट इज़. अभी हमें क्या करना है, fi इंटू xi करना है. तो 3 इंटू 1, सो आंसर इज़ 3.
6 into 2 that is 12, 6 into 3 that is 18, 3 into 4 that is 12 and 5 into 2 that is 10. तो हम पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे, दैट इज़ n इज इक्वल टू 20. इसका टोटल जो हुआ है वो है 55. ये क्या है, इट इज़ द समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई. हम एफ आई इंटू एक्स आई का सम कर रहे हैं, तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे हैं. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ मीन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं. सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन. तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हमने फाइंड आउट किया था 55. सो 55 अपॉन 20, सो द आंसर इज 2.75. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4. अभी थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है ये इसी तरह से है, फोर्थ से सिमिलर है. तो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल आप खुद से करोगे. द नेक्स्ट कंसेप्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.